Hey guys, this is my second podcast. It's a video actually, and basically, I decided to switch things a little because I thought I wasn't reaching out to as many people as I expected because podcasts are audios, and I thought putting it up on YouTube would have been way better. And everybody loves videos, they're a little more engaging. Anyways, so my second guest on No Filter is a really close friend of mine. I have known him since we were kids. His name's Zed, and I'll talk about him and I'll talk to him about how he's faced with stuff ever since he's moved to Pakistan. Zed moved to Pakistan about 2 years ago, a little while after I moved, and I knew how he was struggling to accept the culture shock and getting used to the culture shock. But I'm not sure all of you know about this. So here we go. Hey Zed, how are you? Let's get you Hello, on the call. Assalamu alaikum. Hello, hello, Hey Assalamu Zed, alaikum. Hello. all right, turn up your क्या हाल चाल है भाई? सही है। मैं ठीक ठाक Zed, सुनाओ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Zed, you're doing ACCA है ना? I am doing ACC, yes sir, I Okay. am. Me and Zed, we both share the same career options, right? That's one Yes, we thing. do. Or we got in Yes. common. But other than that, Zed started vlogging. He started doing all of this digital content creating a little while before I did. सही है हम उस पे भी आएंगे लेकिन उससे पहले Zed क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ और हम काफ़ी टाइम से दोस्त हैं What I want to talk about this is when you moved to Pakistan, तुम तकरीबन 2 साल पहले आए थे और Yes. काफ़ी टाइम बाद हमारी बात हुई थी और एक बहुत लंबी कन्वर्सेशन हुई थी लेकिन बिल्कुल, वो बिल्कुल. कन्वर्सेशन शायद सबके साथ ना हो तो let's start. Zed, you moved to Pakistan 2 years ago. Yes. Tell me a little. क्या था Okay, how था? so I'll start with my introduction first. So, Assalamu alaikum everyone, Waleed's followers, podcast listeners. So, my name is Zaid Hassan, and I will not be telling my age. So, I moved to Pakistan back 2 years ago, February 2018. I moved back to Pakistan. So, I am a born and raised up in Saudi, and we lived in the same city. We went to the same schools, which was Pakistan International School English section Jeddah. Shout out So PISJ. shout out PISJ, yes, because there will be many listeners from that school. तो हाँ हम लोग काफ़ी मतलब we know each other from quite some time. उसके अलावा ये है कि when I moved to Pakistan because of the financial crisis in Saudi, and it happened to be that मैं 10 साल तक पाकिस्तान आया नहीं था in some time. तो it was like a clueless thing for me. मुझे नहीं पता था कि हाउस पाकिस्तान कैसा है, क्या है, क्या नहीं है. I didn't know anything about it. तो yes, it was very very मुश्किलात का सामना करना पड़ा when I came to Pakistan. अच्छा जैद एक कल्चर शॉक होता है जद्दा हाँ, एक बड़ा शहर है सऊदीया का बिल्कुल और यू बिल्कुल. मूव टू हैदराबाद है ना Yeah, I moved to अच्छा Hyderabad. हैदराबाद एक छोटा शहर है पाकिस्तान का पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एक बहुत बिल्कुल. बड़ा डिफरेंस आता है तुम एक हाँ, शहर बहुत से बड़ा. how वो कैसा तुम्हारा रिएक्शन था जब तुम आए when you landed and you knew कि अब तुमने इधर रहना है अच्छा तो हुआ कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान शिफ्ट होने का जो प्लान बना था वो बहुत मतलब इट वाज जस्ट अ फ्लिक मिनटों में हो गया था. तो इट वाज अ शॉक फॉर मी. बट आई जब मुझे पता चला कि आई हैव टू शिफ्ट बैक टू पाकिस्तान, तो मैंने उसी वक्त से जो है ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अब मुझे इस जगह को छोड़ के जाना है और मैंने वहीं पर ही सेटल होना है एंड आई नीड टू डू एवरीथिंग. एंड देन इट्स अ बिट पर्सनल एज वेल क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट वन इन द हाउस और फिर मुझे सारी जिम्मेदारी इन छोटे कंधों पे आ रही थी. तो आई हैड टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन इन द हाउस क्योंकि आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली के मेरी एंड वन फैमिली को मोर कोई थिंग मसला ना हो. पता है सऊदीया से जब लड़के आते हैं तो काफी पप्पू होते हैं हाँ, बातचीत बहुत का बहुत ज्यादा. अंदाज नहीं आता उनको एक तुम कहो ना कि जिंदगी में जिस बंदे ने कभी कोई बिजली का बिल ना जमा कराया हो एग्जैक्टली exactly. मैं वो अब उस आके वो उस सारे सारे पॉइंट पे आता हूँ.
तो अच्छा हुआ कुछ इस तरह से था कि हम भी बहुत लल्लू पप्पू से बच्चे थे, कुछ भी नहीं आता था, जीरो बिल्कुल। मतलब व्हेन आई केम टू पाकिस्तान मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो चार्ट होता है ना वो नेगेटिव क्वाड्रेंट से शुरू हुआ था, तो आई वाज दैट बैड। तो व्हेन आई केम टू हैदराबाद इट वाज अ वेरी गुड थिंग टू कम टू पाकिस्तान इन अ वेरी स्मॉल सिटी। जद्दा में हम लोग वो थे, वो लग्जरीज, बड़ी गाड़ियां, घूमना फिरना, हर वक्त बाहर के खाने और हर वीकेंड आउटिंग ये वो वगैरह। तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान स्मॉल, मतलब छोटा शहर है कंपेरेटिवली बाकी बड़े शहरों से। तो इट्स फिर ये है कि हैदराबाद इज 2 hours अवे फ्रॉम कराची। तो आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू हैदराबाद, एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 हफ्ते तक आई डिडंट गेट आउट ऑफ द हाउस। मैं मुझसे बाहर ही नहीं निकला जाता था। मुझे ये होता था इतने सारे बाहर ना, इतने सारे लोग होते थे कि मुझे ना घबराहट होती थी कि यार इनके पास कुछ करने को नहीं, कि सारा वक्त बाहर निकले रहते हैं, इनको ये क्या मतलब। वो जैसे आपको होता है गलियां, ना कि एक टू माहौल पॉपुलेटेड। बड़ा एग्जैक्टली। वो, तो इट वाज टू पॉपुलेटेड के मतलब ना सर फट रहा होता था कि यार ये क्या सीन है, ये घर पे क्यों नहीं जा रहे। देन आराम आराम से आई स्टार्टेड गेटिंग आउट। फिर जाहिर सी बात है, फिर लड़का हूँ तो फिर घर के बाहर चीज़ों को देखना कि कहाँ से क्या चीज़ करनी है, कहाँ से ग्रोसरी करनी है, कोई है नहीं बंदा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड रिलेटिव्स थे, मेरी खाला रहती हैं, तो वी हैड हर सपोर्ट। उन्होंने फिर समझो कि फिर से ना इट वाज अ न्यू बिगिनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग। आपने ग्रोसरी कैसे करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करना है, आपको जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उनको कैसे पूरा रखना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द हाउस रेंट, और मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग वाज ऑन मी। तो फिर पता चला कि बैंक अकाउंट बनवाना क्यों ज़रूरी है। एंड एट द एज ऑफ 19 विदाउट एनी सोर्स नथिंग, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। फिर आई गॉट माई ड्राइवर्स लाइसेंस। गाड़ी नहीं थी लेकिन ड्राइवर्स लाइसेंस, और मतलब सारी चीज़ें अपनी ऑफिशियली अपने आप को जो है ना वो मोल्ड किया। बाहर गया, लोगों से बातचीत की, वो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड किया कि मैं बाहर निकलूं, लोगों से बात करूं, उनकी मेंटालिटी को समझूं। क्योंकि लोग मुझे देखते हैं तो लोगों को ये होता है कि यार ये तो मतलब वो एकदम जो फर्स्ट इंप्रेशन भी पड़ रहा था ना लोगों को देख के, तो वो ये था कि यार ये तो बाहर से आया हुआ है, इसका लहजा बहुत मुख्तलिफ है, ये इस तरीके से बात करता है, ये करता है, ये वो करता है। और फिर मुझे ये था कि मैं मेरे मेरे आई डोंट नो, आई शुडंट मतलब आई शुडंट बी फ्लेक्सिंग, बट आई एम वेरी अडेप्टिव इन सिचुएशंस। तो मैं जो है ना, जो सबसे पहली चीज़ मुझे ये होती है कि जब आप अडेप्ट करता हूँ वो होती है लैंग्वेज। तो जब मैं हैदराबाद गया तो लोगों की लैंग्वेज सुनी कि बोल किस तरीके से रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं। और एक चीज होती है जब व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल ना, लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल। इट मैंने डज। फॉरेन फॉरेन जो है उन लोगों के साथ ना उस लैंग्वेज में बात की जिस लैंग्वेज में वो मुझसे बात करना चाह रही है, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल। फिर आई हैव अ वेरी फ्रेंडली नेचर, यू नो दैट, मतलब सिंस वेरी या फॉर श्योर। सिंस द ओल्ड डेज। तो वो फॉरेन फॉरेन हर बंदे के साथ फ्रेंडली होना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, इर्द गिर्द देखना। तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग हसल। मतलब अभी बोलने में तो सिर्फ 2-3 जुमले हैं, लेकिन जब करने पे आ रहे थे तो बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा, इट वाज वेरी ट्रबल। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू? ये सब तुमने जैसे कहा कि अभी है एग्जैक्टली देखो, यूजुअली तो जितना मैंने देखा है पाकिस्तान शिफ्ट जब बंदा होता है, जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी, पहला साल आई थिंक इज द ईयर ऑफ टेस्ट, हाँ बिल्कुल। राइट? इट्स उसके इट्स अ ईयर ऑफ बाद टेस्ट। यू स्टार्ट, तो उसके बाद you start getting adjusted and stuff like that. Now, हम्म। so this was your first year. You spent it in getting used to stuff. सही यस। है, accents की बात की तुमने, लाइसेंस बनाया आहिस्ता आहिस्ता। अब आई थिंक उसके बाद एक कंफर्ट जोन जब तुम्हारा शुरू हुआ, what happened then? How did you think? Acha, have you ever thought that you're gonna be living here for the rest of your life? I mean, that was the first thing when I landed in Pakistan. I mean, I was in so much shock. I thought कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत लंबी vacation हो जाएगी. I'm not staying here. I mean, that was हाँ। for me. How was it for you? Did you have it in your mind कि नहीं? अच्छा, आई वाज जब मैं पाकिस्तान आया तो जब सऊदीया से यू लीव तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड फाइनल एग्जिट, के जिस पे यू कैन कम बैक टू सऊदीया। मतलब यू कैन कम बैक फॉरेन बट ऑन अनदर अनदर वीजा, और उन सारे चक्रों के बाद यू कैन गो बैक।
तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान मुझे पता था आई एम गोइंग देयर परमानेंटली, और द वेरी फर्स्ट थिंग आई लर्नड अबाउट सऊदी एंड पाकिस्तान इज दिस इज सऊदीया, दिस इज पाकिस्तान। सही है। सो यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर देम कि सऊदीया में तो ऐसा था और यहाँ तो ऐसा है, और वहाँ तो ये करते थे और यहाँ तो ये करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने अपने आप को समझाई ना कि जैद, डोंट इवन कन्वर्ट द करेंसी, क्योंकि नाउ यू आर गेटिंग पाकिस्तानी रुपीज एंड नॉट सऊदी रियाल। तो मुझे ये था कि डोंट डोंट डू दिस, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जो मुझसे जो पहले लोग चले गए थे, तो द वेरी बिग थिंग वो ये था, यार सऊदीया में तो हम ऐसे होते थे एंड वी यूज्ड टू डू दिस एंड दैट, और जब पाकिस्तान है अबे यार छोड़ यार, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक मतलब जो एक कंपैरिजन वाली चीज है वो सबसे पहले हटा दो। मतलब इफ यू आर इन पाकिस्तान देन यू आर इन पाकिस्तान। दूसरी चीज ये है कि जब पाकिस्तान आ गया, शिफ्ट हो गया, तो आई स्टार्टेड लर्निंग, वही वाली बात है, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट पाकिस्तान। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग मुझे ये था, आप कभी भी ना किसी भी शहर को पहले से जज नहीं करो तो बेहतर है। एक एक सोशल मीडिया, एक हम लोगों को होता है ना, यार पाकिस्तान में तो अभी कराची में बाहर निकलो फोन छिन जाएगा, ये हो जाएगा, कोई गोली मार के चला जाएगा, ये वो वगैरह। मैं कराची जा रहा था तो मुझे ये था, अबे यार ये तो मैं तो बहुत गलत जगह पे जा रहा हूँ। और लेकिन मुझे ये था कि नहीं नहीं, हालात बदल गए होंगे, 10 years इज लॉन्ग टाइम, ये वो वगैरह वगैरह। तो आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड। तो वो वही वाली बात है, इट वाज ऑल इन द माइंड, वो चल रहा था कि ये वो वगैरह। तो पहली चीज कंपेयर करना छोड़ दिया। दूसरी चीज ये है कि मतलब उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना घुलना मिलना शुरू किया, फिर देखा। फिर एट द एज ऑफ 19 मैं जो हूँ वो आई वेंट ऑन अ पाकिस्तान टूर, मतलब अलोन, on my own हम्म। expenses, on my own सही है। savings. So I was a little boy at that time, like I was 19 years old. तो मैंने हैदराबाद से बस पकड़ी, I went to Islamabad, which is like the मतलब opposite directions है बिल्कुल। तो the duration of the bus was 22 hours. तो I had to travel from Hyderabad to Islamabad 22 hours to get to Islamabad. तो अच्छा, ये जो बस का, सबर सबर, ये बस का मुझे बताओ। देखो पाकिस्तानी बसें बड़ी मशहूर हैं, तुम जो भी कह हाँ लो, हाँ चाहे हाँ तुम हाँ हाँ। वीआईपी बस हो जाए अच्छा, क्यों मेरा पता है, एक बार मैं पेशावर जाना था। हम्म। मेरा कोई कजन उस टाइम पे, ये मेरा आई थिंक पहला साल था पाकिस्तान में, उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी। सही है। सही है। तो सही है। क्या हुआ कि मुझे जाना था किसी काम से, एक्चुअली लाइसेंस बनवाना था पेशावर से, आई हैड टू सही। ब्राइब हिम ऑफ, तो मुझे जाना पड़ा और मैंने बस ली क्योंकि मेरा कोई कजन उस वक्त जा नहीं रहा था। सही तो है। पता है, मेरा जो एक बस ट्रिप था, इट वाज क्रेजी। देखो पहला साल, अभी हम स्टिल लर्निंग, एक बड़ा पप्पू सा बच्चा हूँ, और हम्म। फिर एक बस में तुम मुझे ढेर सारे पठानों के साथ डाल दो। देखो, नो ऑफेंस, हम पुख्तून, सही है, हम हाँ जुबान है, हाँ। लेकिन इनकी हरकतें देख के मैं, बिल्कुल बिल्कुल। 4 घंटे की जो वो 6 4 6 घंटे जो बस टूर था, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था बर्दाश्त। तो हाँ 22 घंटे तुम एक बस में, यार कैसी? इट वाज, अच्छा जब मैंने बस का किया ना, तो जब मुझे जाने का हो रहा था तो आई हैड मेनी वेज, ट्रेन, गाड़ी, वैन, बस, सारी रिसर्च की, अच्छा। यूट्यूब खोला, दुनिया भर के रिव्यूज देखे, बस कैसी है, कैसी जा रही है, ये वो वगैरह। एट द एंड ऑफ द डे मैं आई फाइनलाइज टू फैसल मूवर्स। नो नो ब्रांडिंग, नो स्पॉन्सरशिप, नथिंग एट ऑल। आई ऐसा आई बस बेस्ट है भाई। फैसल मूवर्स, गुड क्वालिटी, गुड मनी एंड गुड ट्रैवलिंग, जो कि विच इज़ वेरी मतलब रीजनेबल। तो मैं इस्लामाबाद, हैदराबाद से इस्लामाबाद आई केम इन लाइक 3,500, 3,450 rupees, I remember. So that is the amount I paid from Hyderabad to Islamabad, which is मतलब अगर फैसल मूवर उस पे सॉरी डेवो पे जाते हैं तो इट्स अराउंड 4,995। हम्म। 5 रुपए उन्होंने छोड़ दिया ताकि वो 5,000 वाला लोगो ना आए। 5 वाला ना है, तो, तो लेकिन हम भी मतलब पाकिस्तानी हैं, हम राउंड ऑफ हाँ करके 5 5.5 कह देते हैं, 5.5, हाँ। तो मतलब वो एक तो ट्रैवलिंग, और दूसरी चीज़ ये थी कि आई एम वेरी यूज टू ट्रैवलिंग। लेकिन हम लोगों को वो आदत थी, वो जो एक लग्जरियस नहीं होती कि अपनी गाड़ी पे जाएंगे, जेएमसी मक्का जा में। रहे हैं जीएमसी में, वो मतलब वो सारे वो शशके उस वक्त के पूरे कर रहे थे। तो अब ये पहला पहला सफर था बस के ऊपर, कि बस में जाना है इतनी दूर।
मतलब गाड़ी में वो बैठे हुए थे, तो दो तीन चीज़ों का सहारा ये हो गया था कि एक तो उस बस में स्क्रीन लगी हुई थी, कुछ मूवीज थी, कुछ दर्स भी थे मौलाना तारिक जमील साहब के, और कुछ गाने वाने भी थे। तो अब वो ना, अच्छा अब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना वीडियोस बनानी है, मुझे ना व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं देख रहा था सारी चीज़ें और मुझे ये था कि मैं ना कुछ करता हूँ। तो जब मैं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो दैट इज द वेरी फर्स्ट व्लॉग आई मेड, मतलब जो मेरा पहला व्लॉग था, जो कि पोर्ट्रेट में था, कि वो लैंडस्केप में भी नहीं था, क्योंकि आई डेंट नो कि किस तरह से शूट करते हैं चीज़ों को। तो आई मेड अ वीडियो विच इज़ वर्टिकल, विच इज़ ऑन माई यूट्यूब एज वेल। तो और इट्स अबाउट ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद एंड एवरीथिंग, द इंटायर स्टोरी इज देयर। तो इट वाज, मतलब मुझे ये था कि या तो मैं मोबाइल पे होता था, मोबाइल मोबाइल यूज करता था, तो मुझे ये होता था यार बैटरी ना कम हो, लेकिन उसका भी हल ये था कि उन लोगों ने चार्जिंग पोर्ट्स भी दी हुई थी बस के अंदर। मैं तो हैरान हूँ, इट मैं वाज वेरी हैरान गुड, हूँ मतलब क्योंकि मेरा मेरी जो एक्सपीरियंस अच्छा बस, था। अच्छा मेरी जो बस थी ना पेशावर के लिए यार, हाँ मैं सिर्फ ये शुक्र कर रहा था कि इन्होंने मेरी सीट बदल दी थी क्योंकि वो टूटी हुई थी। टीवी छोड़ो, चार्जिंग छोड़ो, अच्छा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं, पठान सारे जी अपनी एक हाँ, महफिल लगाई हुई। तो इस तरह की बस में तो जाहिर है गुजारा नहीं होता, लेकिन यू वर लकी कि तुम्हें ये सब कुछ एक बस में आई वाज मिला। वेरी लकी, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग बैक, उस वक्त आई वाजंट लकी एट ऑल, मतलब मैं आई हैड द बेस्ट ट्रैवल एंड द वर्स्ट ट्रैवल एट द वेरी सेम टाइम। तो व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद, तो आई हैड द वेरी, मतलब बेस्ट बस, इकोनॉमिकल थी, पैसे अच्छे थे, खाना खाने को दिया, जूस दिया, बार बार पेप्सी सर्व कर रहे थे फैसल मूवर्स वाले। जब मैं, अच्छा मेरा ये था कि मैं पहले इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से फिर मैं आई वेंट टू लाहौर। तो वो भी मैं फैसल मूवर पे गया था, क्योंकि उस वक्त बसेस अवेलेबल थी। जब मैं वहां से, आई हैड टू गो फ्रॉम लाहौर टू कराची। तो जब मैं कराची जा रहा था ना, तो एट दैट टाइम पब्लिक हॉलीडेज, मेरे क्रिसमस, विंटर वेकेशन, दुनिया भर की सारी चीजें, फैसल मूवर completely booked for a week, trains booked for a month, एंड लाहौर में आई हैड स्टे ऑफ 2 days, और मुझे ये था कि यार अब मैं घर कैसे जाऊं, मतलब मैं क्या पैदल निकल जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो एट दैट टाइम फिर बड़ी मुश्किलों से वो डेवो की बस मिली, डेवो की ना बसेस अवेलेबल थी। तो अच्छा, उधर उन लोगों ने एडवर्टाइज किया, हो वीआईपी बसेस, वीआईपी, और 5,000। आई वाज लाइक यार, आई हैव अ वेरी शॉर्ट बजट हियर, लो एक्सक्यूज मी, बात सुनो क्या है। तो 5,000 रुपए की बस थी वापसी, मतलब टू कराची, फ्रॉम लाहौर टू कराची। मैं ये देख रहा हूँ, मैं हैदराबाद से लेके मैं इस्लामाबाद गया हूँ 3,500 रुपए में, और मैं लाहौर से कराची आ रहा हूँ 5,000 रुपए में। उन्होंने कहा वीआईपी बसेस होंगी, ये वो, मैंने बोला अल्लाह का नाम लेके मैंने पैसे दे दिए। अच्छा, माय बस वाज ऑन टाइम, व्हेन आई एंटर्ड द बस, ओ हो, तो अल्लाह तौबा है, मेरी माफी है, मैंने कसम खा ली, मैं जिंदगी में कभी भी डेवो पे सफर नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं बेशक 4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाता, लेकिन मैं उस बस पे, मतलब ये आई है वुडंट वांट टू हमारे ट्रैवल। पाकिस्तान की बसेस, और ट्रैवलिंग टफ हो जाती है, बट यू बहुत हैड एन टफ यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस, तुमने आई हैड एक अमेजिंग पहला एक्सपीरियंस। ट्रैवल किया सोलो। अच्छा, अब इस ट्रैवल से तुमने काफी कुछ सीखा होगा, आई बहुत थिंक तुम बहुत। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए होगे, यू ट्रैवल्ड अलोन डिडंट यू? अलोन, यस, तो बिल्कुल। हाउ वाज दैट, हाउ डिड यू यार फील? honestly, I think that every 18, 19, 20 year old should travel alone once. अगर आप पाकिस्तान में स्पेशली, आई थिंक यू शुड ट्रैवल, क्योंकि जो मेरे दिमाग में वो था ना, एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान, अच्छा मैं आ रहा था हैदराबाद से, विच इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, मतलब बिल्कुल छोटा सा शहर है, एंड आई वेंट टू कराची इन द मिडल। मैं कराची पहले विजिट कर चुका था, तो कराची का तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब आई वाज लाइक कि यार मैं, मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, इट्स इन द हार्ट, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। कराची बहुत गंदा है, बहुत पोल्यूटेड है, बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, दुनिया भर की चीज़ें, बट इट इज़ अ वेरी वेरी लाइवली सिटी, मतलब आप, इट्स लाइक द मोस्ट एक्सेप्टिंग सिटी। आप जाओ, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप, यार आप किसी ना, किसी दूसरे शहर में आए हो, आपको ऐसा लगेगा डेफिनेटली। यू आर इन अ वेरी लाइवली सिटी, पीपल एक्सेप्ट, आप उर्दू बोलते हो, पीपल डोंट स्टेयर एट यू, यार व्हाट इज दिस। तो इट्स फाइन, खैर। तो व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद, जब व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद अलोन, आई वाज अ मेच्योर, मतलब मेच्योर गाय, I would say,
कि मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द प्लेस इज। तो इस्लामाबाद ऐसी जगह थी कि मुझे लगता था कि यार आई वांट टू ना आई वांट टू शिफ्ट हियर व्हेन आई हैव माय ओन हाउस, व्हेन आई हैव माय ओन माय कार, एंड इट्स लाइक आई वुड लाइक टू हैव द शाम की चाय इन माय लॉन एंड हैविंग अ डॉग प्लेइंग अराउंड। तो मतलब ये प्लानिंग थी कि आई वांटेड टू शिफ्ट टू इस्लामाबाद, बट when I'm something, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी कर लूँ, आई वुड लाइक टू डू जॉब हियर या आई वांट टू डू बिजनेस हियर। तो दैट वाज माय एंटायर थिंग। बट मुझे ये था कि फॉर माय एजुकेशन आई वांटेड टू गो टू कराची, क्योंकि हैदराबाद में देयर आरंट मच अपॉर्चुनिटीज। Institutions. तो साथ ही साथ जब इस्लामाबाद देखा तब आई वेंट टू लाहौर। लाहौर इज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेस, बट आई डोंट नो, मेरी नेचर ऐसी, इट्स अ वेरी लाइवली सिटी, बहुत बहुत शानदार शहर है, खूबसूरत है। इट हैज दैट एंशियंट वाइब, मतलब वो पुरानी एक वाइब है कि लाहौर लाहौर है। खाना गुड है, मतलब एवरीथिंग इज वेरी नाइस। बट कराची वाला हो तो मुझे ना थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट, बट I कराची, get it. होता है हाँ होता मुझे है. ये था कि मैं आई वांटेड टू गो टू कराची फॉर स्टडीज एंड देन शिफ्ट टू इस्लामाबाद। बट अल्लाह अल्लाह मेक्स द बेस्ट प्लान्स फॉर यू। तो आई कुडंट शिफ्ट टू कराची, आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद डायरेक्टली। तो यस, दैट इज अच्छा. समथिंग, मतलब वेरी Islamabad, पता है कराची से I've noticed a lot of people have been moving to Islamabad. There's यस, something about Islamabad. Look, I'm not gonna lie. I hate this city. सही है, मुझे कभी कभी ये बहुत बोर कर देती है ईदों बिल्कुल पर. बिल्कुल है, बोरिंग है। लेकिन हाँ, लेकिन there's something about Islamabad जो शायद पता है और कहीं नहीं है. मैं आई देखो आई होम वुड आई टाउन वुड आई मेरा वुड एग्री। हाँ होम टाउन मेरा पेशावर है. सही है, वहां हाँ। जाके एक होमली वाइब्स आती हैं ये वो. बट इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल यार. तुम किसी दिन एक ड्राइव पे निकलो और मौसम कभी ओहो, अच्छा हो लवली, और लवली, लवली। तो मतलब डेफिनेट. इट्स मतलब मुझे लगता था कि यार अभी जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था तो मुझे तब भी ये था कि नहीं यार, आई आई थिंक आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड आई वुड वांट टू गो बैक टू कराची। बट अल्हम्दुलिल्लाह, विद इन 6 months I think I am the most satisfied person, and I wouldn't want to leave Islamabad or at any cost. मतलब मुझे अगर कोई opportunity आए, I would think about it, but I have no plans at all to going to any place. I love Islamabad a lot. I would love to stay here for as long as I can and for as long as Allah has planned for me. तो सो मतलब I इस्लामाबाद love तुमने ज्वाइन Islamabad. किया, तुम इधर आए. सही है, तुमने सॉरी इस्लामाबाद ज्वाइन किया. मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इस्लामाबाद आती आई थिंक TMUC ज्वाइन किया, राइट? अब मैंने एजुकेशन. मैंने जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था तो वही वाली बात है, आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च कि मैंने कहाँ से क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं करना। एक्सक्यूज मी, हाँ। तो मुझे ये था कि अब आई मैं पहले किसी और जगह पे किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहा था, which was like in a Bangalore. But a friend of mine, who's a friend of yours as well, I don't know if I should say his name. He's a गो है, mutual. गो फॉर इट. He's Anas Asad Abbasi. या तो तो उसने I got in contact with him. He was like, जानी जब ACCA करना है तो TMUC आ जाओ, यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है, क्लासेस हैं, और इट्स नॉट लाइक अ ट्यूशन, इट्स लाइक अ सो प्रॉपर, मतलब तुम स्कैन्स जा रहे थे आई थिंक. नहीं नहीं, आई वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद व्हिच इज लाइक इन अ अच्छा बैंगलोर अच्छा, समथिंग। आई हर्ड हाँ इट. अच्छा, मुझे वही. तो TMUC तुमने ज्वाइन किया. और बाय द वे हमारा इंटरेक्शन आई थिंक पाकिस्तान में सबसे पहले इंटरेक्शन जो था, जो मीटअप था, वो अनप्लान्ड था. वो ये था, मैं TMUC, मैं क्योंकि TMUC बहरिया में हूँ, मैं इस्लामाबाद हाँ, वाले कैंपस आया. आसिम अजहर का कोई कॉन्सर्ट था कॉन्सर्ट और था। मैं टिकट्स लेने आया हूँ. मैं निकला हूँ बाहर तो वहां से सामने से एक लड़का चलता हुआ नजर आ रहा है. मैं कहा जानी पहचानी शक्ल है. और आते आते थोड़ी देर माइंड प्रोसेस कर रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो. मैं कहा जैद. एंड तो देन हाँ, या. इट वाज वेरी, मतलब मुझे इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम जो हो वो टीएमयूसी में पढ़ते हो या यू आर स्टूडेंट ऑफ टीएमयूसी। मुझे बस ये पता था तुम यू आर इन इस्लामाबाद। तो लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, एंड इट, और मैं चलता हुआ रहा हूँ और मैंने बोला यार वलीद वलीद यहाँ, वलीद वलीद, हाँ ये इसको मैंने देखा है, ये मेरा अच्छा, दोस्त है। ओके. सो ACCA करने का प्लान कैसे आया? वाई ACCA, ये क्या था? ओह, वेरी टफ क्वेश्चन। अच्छा खैर, आई गॉट दिस आस्क्ड अ लॉट, मतलब
मेरे पास ना दो ऑप्शंस थे, इधर सीए या फिर एसीसीए। तो जो मतलब एजुकेशनल काउंसलिंग चाह रहे हैं, प्रोफेशनल है हम यहाँ पे ना इस मामले में। तो सीए के अंदर ये है कि सीए इज वेरी पाकिस्तानी बेस्ड, इट्स कंप्लीटली पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन। एसीसी इज अ सर्टिफिकेशन एज वेल, बट सीए की ना सीए की ड्यूरेशन है कि आप यू गेट डन विद योर पेपर्स एंड योर आर्टिकलशिप इन 6 years मिनिमम, मतलब इतना Yeah. टाइम लग ही जाता है। एसीसीए का इट्स हाफ। अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हो एंड यू प्लान टू गिव योर पेपर्स वेल, आप 3 साल 3.5 साल के अंदर बहुत अच्छे से पेपर्स अपने कंप्लीट कर लेते हो। दूसरी चीज, जब आप सीए करते हो ना, तो सीए में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो आपकी बेसिक बैकग्राउंड एजुकेशन है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने एफएससी किया हुआ है या ए लेवल्स किया हुआ है, तो वो जो है वो अपग्रेड नहीं होती। बट जब आप एसीसी में आते हो ना, तो एसीसी में आपके पास ना एक ऑप्शन आता है कि एसीसी में अराउंड 17 पेपर्स होते हैं, 17 पेपर्स होते हैं अगर पूरा शुरू करो। तो व्हेन यू आर डन विद अराउंड 4 and 9, around 13 papers, तो Hmm. you can apply for a bachelor's degree which is मतलब recognized by HSC। Oxford Brookes University. हाँ, तो वो पाकिस्तान में they count it as a university, as a bachelor's degree। और उसके लिए आपको एक थीसिस करना पड़ता है, और उससे फिर ये होता है कि आप साथ में यू आर अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट एंड अ बैच, मतलब एज अ बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल। तो मतलब ये दो चीजें हो गई। सीए के अंदर आपको ये चीज नहीं मिल रही, एसीसीए में इट्स अ I यस यस। think, in short, ACCA is amazing. Come on, आई ACCA थिंक, gang. हाँ, आई थिंक इट्स अमेजिंग बेहतरीन है. एंड हर एक चीज तीसरी है. चीज, There's तीसरी चीज, entrepreneurship in it, and there's other. Carry जस्ट on. हाँ, Yeah. तो वेरी सॉरी फॉर कटिंग यू। No worries. तीसरी चीज ये है कि सीए के अंदर ना यू गेट वेरी, द मेजर इज टैक्सेशन और ऑडिट। एसीसी के अंदर ये है कि इट इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हो और किसी भी फील्ड में कर सकते हो। बैंकिंग में भी जा सकते हो, एचआर में भी जा सकते हो, अकाउंटेंसी में भी, ऑडिट में भी, टैक्सेशन में भी। तो यू कैन गो इनटू एनीथिंग यू वांट। तो ये सबसे बड़ा इसका गो है कि हाँ ये करना बेनिफिट है, चाहिए हमें। डेफिनेटली डेफिनेटली. एग्जैक्टली. मैं यही कहने वाला था. अच्छा, सो ACCA के साथ साथ TMUC का माहौल तुमने ज्वाइन किया. TMUC तुम्हें अब तुम रूट्स के बच्चे हो, सही है. अब मैं रूट्स का बच्चा और हूँ, आई एम रूट्स का वेरी बच्चा बर्गर, हो आई एम तुम. एक्सट्रीमली बर्गर। मिलेनियल हो, you know. मिलेनियल हूँ बिल्कुल। Millennials. यस How does being a millennial यार, feel? इट्स आई डोंट नो, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट मतलब मेंटालिटी, और आई एम स्टिल द वेरी सेम जैद आई यूज्ड टू बी इन जद्दा। आई हैवंट मेरी पर्सनालिटी एक तरह से सिर्फ ग्रूम हुई है, चेंज नहीं हुई। तो आई स्टिल, आई विल कॉल माई सेल्फ बन कबाब, नॉट बीच बर्गर। का हाँ, बीच का ना, अंडे मैं वाला बहुत बर्गर. अंडे वाला बर्गर, बिकॉज राइट. मुझे ये नहीं होता कि बर्गर भी नहीं हूँ और बहुत ज्यादा ये भी नहीं है कि भाई यार, ये वाला सीन नहीं अच्छा, है तो। have you had any beef with anyone here? कोई आहिस्ता, कोई पंगे, कोई ये, कोई ना वो. ना 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 ना। How do you अच्छा, मेरा क्यों personally for me, I am extremely demotivated at university, क्योंकि मेरा होता है कि हाँ, यार जहाँ मैं देखता हूँ I don't find anyone my type, so it's kind of tough for me to adjust, so I just take class and I come back. अच्छा, तो फॉर मी आई गॉट, आई थिंक विद इन अ मंथ और टू आई गॉट वेरी सोशल, बिकॉज मैंने बताया ना आई एम वेरी अडेप्टिव एट सिचुएशंस। मुझे ये होता है कि अब जैसे हैदराबाद में था तो मुझे ये था कि आई बिहेव्ड लाइक अ हैदराबाद पर्सन। जब मैं इस्लामाबाद आया तो मुझे ये था कि आई वांटेड टू बी लाइक द पीपल अराउंड मी। तो आई मेड फ्रेंड्स, आई मेड कॉन्टैक्ट, मतलब आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में होते हो एंड एट यूनिवर्सिटी एवरीथिंग एवरीवन इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि हर बंदा नया है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर बंदे से दोस्ती कर लो। और एंड देन इवन यू अंडरस्टैंड कि यार मुझे इस बंदे से दोस्ती करनी चाहिए या मुझे इस बंदे को जानना चाहिए और फिर दोस्ती करनी चाहिए। तो पहले तो मुझे ये 1 महीना ये लगा कि मैं हर बंदे के साथ ना बैठा, अच्छा ये ऐसी बातें करता है, ये ऐसी बातें करता है, ऐसे ये ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर वो एक दिमाग में ना एक वो बबल बन गया, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके साथ दोस्ती करनी है, इसके साथ दोस्ती करनी है। एंड यूनिवर्सिटी के अंदर इट्स नॉट रियली
मतलब फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए यूनिवर्सिटी के अंदर, विच वर नॉट माय टाइप, बट विच वर वेरी 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 कोऑपरेटिव एंड वेरी कोरिलेटिव, के मतलब वो फॉरेन फॉरेन उन्होंने भी ये नहीं कहा ओ भाई सऊदीया से आए इसके तो दिमाग अलग होंगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। I तो think आई people have हैड started getting used to the fact that overseas Pakistanis are coming back. क्योंकि 2015 हाँ तक जब मैं इधर आता था, when I tell people कि मैं छुट्टियों पे आया हूँ from मैं actually 2015 में मैं O levels के लिए मैं ट्यूशन लेने मैंने असास एकेडमी ज्वाइन की थी, और जब मैं वहाँ बताता था तो एक बड़े अजीब अजीब मुझे रिएक्शंस मिलते थे. बट नाउ कंसिडरिंग कि यार गल्फ में जितना क्राइसिस आ रहा है एंड स्टफ, मोस्ट हाँ, पीपल हैव कम बैक, सो इट्स लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, जब वो शुरू शुरू में, जब बैक इन 2015-16 वो लोग आते थे फॉर द समर वेकेशंस इन पाकिस्तान, तो बताते थे हम सऊदीया से आए हैं, तो लोग उनको बोलते थे अबे अभी भी वहाँ ऊंट चलते हैं क्या, वहां पर अभी भी मट्टी उड़ती है ये वो, एंड इट वाज टिपिकल वेरी क्वेश्चन फनी। कि हज किया है तुमने? हज किया है, अच्छा उम्रे कितने किए हैं, और वो एहराम एहराम कैसे बांधते हैं, और कितनी दफा गंजे हुए हो, मतलब ठीक है जद्दा से उसके मक्का आई थिंक कितना जी, कैंट जितना रास्ता है आई थिंक अराउंड हर 1 आवर वीकेंड. तो मैक्सिमम। एग्जैक्टली not much of a, तो Khair, TMEC, the one thing good about TMEC is that I found a lot of overseas Pakistanis here. I mean, I met a lot of people that speak fluent Arab countries, Kuwait से हाँ आए, Oman से आए, stuff like that. So, I think क्यों मेरा ये था कि I didn't want to get into a local university. I don't know if that sounds weird, but typical जो universities हैं, I saw their ambience, I saw their environment, इनके classrooms देखे, तो हम्म। I think TMUC, shout out TMUC, come on, you're amazing, Faisal Mushtaq, I you're think, amazing. yeah, I think he's definitely a great personality because he took that initiative, and the thing is, it's TMUC is very accepting. मतलब, if you are, मतलब, if you, it comes in handy when hard times or tough time comes onto you. कि मतलब ना बहुत ज़्यादा कोई restrictions हैं, बहुत ज़्यादा freedom भी है, और ना बहुत, ना बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि यार जाके क्या करेंगे, तो इट्स लाइक आप रोज जाते भी हो, इट्स अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी एज वेल, इट गिव्स यू दैट वाइब एज वेल, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है कि ये नहीं है कि ओहो नहीं, वो अटेंडेंस वाला चक्कर नहीं है अटेंडेंस वाला कि चक्कर नहीं है. मतलब अगर नहीं जाओगे तो मतलब कोई इशू नहीं होगा, तो मतलब वो चक्कर नहीं है, तो वो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब आई डोंट नो, हम लोग तो, हम मैं क्लासेस लेता हूँ, फिर आई गेट सोशल, मैंने अपना एक टाइम सेट किया हुआ है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में रहूंगा, और इसमें मैंने ये काम भी सीखना है, ये काम भी सीखना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सारे काम करके, और फिर उस टाइम से पहले पहले आई कम आउट। तो अच्छा, तो vlogging का थोड़ा सा मुझे बताओ. You've started vlogging and I matter of fact जो I watched a couple episodes of it. मैं तुम्हारी हाँ हाइकिंग वाली एपिसोड देखी थी, हाँ लेकिन आज मैंने तुम्हारी आई थिंक 2 हफ्ते पुरानी जो एपिसोड थी मैंने वो देखी है, वो जो फिटनेस चैलेंज था. What was हाँ that? हाँ हाँ And हाँ you, हाँ पता है हाँ तुमने कहा ना कि you adapt quickly. I think it's more than that. The fact that you're charismatic, you have that charm कि the person gets hooked. I mean मैंने देखा, मैंने कहा यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर, इसकी बातें देखो, नया यूट्यूब इसने खोला है, सही है, और he's doing his, he's doing it, he's getting there, you know. थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग सच बिग वर्ड्स फॉर मी। इट्स एक्चुअली नथिंग, बस मुझे ये होता है कि जब शुरू शुरू में आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग, इट वाज फॉर फन, इट वाज जस्ट portraying out, it was a shout for help to those people whom I can help, and it's still the same क्योंकि I love helping people. I have been a professional educational counselor for a very long time. I have been a counselor for people coming out of depression, and I have been, क्योंकि बातें करने का शौक है, I can motivate people, and it was all about being an inspiration क्योंकि I think कि I have very huge targets in my life that I want to do, and I think this is the pathway कि मैं ये इससे गुजरूंगा तो मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ जिंदगी के अंदर। तो मुझे ये था कि आई वांटेड टू स्टार्ट स्मॉल, एक एक कदम लूंगा। तो मैंने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने अभी बताई, जो इस्लामाबाद वाली बताई थी,
उसके अंदर आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कि आई सेड कि आज मैं कदम ले रहा हूँ, कल को मैं भागूंगा और उसके बाद फिर मैं उड़ूंगा। तो Yeah, yep. तो आज मैं अब मैंने थोड़ी सी अपनी पेस बढ़ा दी। आई गॉट मोर कंसिस्टेंट विद वीडियोस बिकॉज द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ इज आई कैंट वेस्ट टाइम। आई डोंट हैव मच टाइम टू डू थिंग्स। मतलब मुझे ये होता है बस फारिग नहीं हूँ, आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे ये होता है कि बस वीडियो पे वीडियो आती रहे, बस कुछ ना कुछ अच्छा, बनाता ओके। रहूँ अभी भी। सो जेड, यूट्यूब एक चीज़ है, यू डू फॉर फन, लेकिन इसके साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी फीचर, क्योंकि मोटिवेशन टू स्टार्ट अ चैनल और एक डिसिप्लिन टू कीप इट गोइंग, एक बहुत फ़र्क है। आई हैव स्टार्टेड पॉडकास्टिंग, एंड दिस अदर पीपल हु यू मस्ट हैव मोटिवेटेड, और उन्होंने भी कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा। टेल देम अ लिटिल बिट अबाउट कंसिस्टेंसी। ये हाउ डू यू कीप मोर देन दैट, यू नो मैंने नोटिस किया कि देखो, कल परसों मैंने अपनी पॉडकास्ट रिलीज की, इट गॉट अ लॉट ऑफ व्यूज, आई वाज हैप्पी, एंड देन आज मैंने एक और की, बट आई नोटिस कि इट टुक ऑलमोस्ट अ डे फॉर द हाइप टू गो डाउन, एंड आई फेल्ट अ लिटिल डीमोटिवेटेड कि शुड आई इवन कंटिन्यू दिस एग्जैक्टली, एट यस सच यस पॉइंट। यस। क्या करते हो? यार अच्छा देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ नहीं। मैं अभी सिर्फ क्वारंटीन है तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हुआ हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा, देखो इट्स लाइक कीप ट्राइंग हार्ड एंड हार्डर एंड हार्डेस्ट एंड इट्स लाइक कंसिस्टेंसी है ना वो। फॉर एग्जांपल अब तुमने ये बात बोली ना कि पहली डाली हाइप क्रिएट हुई, दूसरी डाली एकदम गिर गई। वी पीपल, वी मिलेनियल्स, हम लोगों को ऐसे मूड चेंज होता है। वी हैव हाँ। वेरी फास्ट मूड स्विंग्स, मतलब मिनटों में ना वी आर समथिंग एल्स। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मुझे ये पता है कि दूसरा अभी एट दिस पॉइंट आई नो नो वन इज वेटिंग फॉर माई वीडियो, एंड आई नो दिस कि अभी कोई बंदा मेरी वीडियो नहीं देख रहा, और मैं फिर भी इतना अपना इनपुट दे रहा हूँ कि नहीं, जितने देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वो एंटरटेन हो रहे हैं बस। मुझे ये होता है कि मुझे पता है कि 2-4 लोग हैं जो कि देख रहे हैं, सही है, और नहीं भी देख रहे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई लर्न दिस फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ यूट्यूबर एज वेल, कि ही पुट्स वीडियोस फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट फॉर पीपल। लोगों को ना अभी मैं पसंद नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को ना हर बंदा उस वक्त पसंद आता है। इरफान जुनेजो को किसी ने भी पहले व्लॉग पे नहीं पसंद किया था। when he has that certain level, now people are like, oh, Irfan Junejo, Irfan, Irfan, मैंने Irfan. उसको तब, आई थिंक, इंटरेस्ट मेरा उस तरफ डेवलप हुआ जब मैंने उसकी नॉर्दर्न एरियाज की जो व्लॉग्स थी वो हाँ, मैंने, और एंड देन वो आई रियलाइज। वो उसी वक्त उसकी हाइप क्रिएट ही उस वक्त हुई थी उससे। और वो जो जब उसने नॉर्दर्न एरियाज वाला जो उसने व्लॉग बनाया था, उससे पहले वो बंदा 300 व्लॉग्स बना चुका था। 300 वीडियोस इज अ लॉट। मैं जब अभी मेरी 30 वीडियोस नहीं है, मेरी हालत हो जाती है। और 300, और वो बंदा डेली ब्लॉगिंग से उसने स्टार्ट की कि आज व्लॉग, कल व्लॉग, परसों व्लॉग, तरसों व्लॉग, एवरी सिंगल डे देयर वाज अ व्लॉग। नाउ एंड दिस इट थिंग अबाउट व्लॉग्स कि हमने थोड़ी देर पहले जैद से मेरी बात हो रही थी इस बारे में कि एक, अगर आप 1 घंटे का व्लॉग बनाते हो ना, तो हाँ, 1 घंटे का व्लॉग आपका बेसिकली 5 घंटे की मेहनत है। बिल्कुल उसको बिल्कुल। उसके सर्टेन फॉर्मेट्स में लाना, उसके हाँ, लिए छोटी छोटी ये जो बीप्स वगैरह हम सुनते हैं, ये पॉडकास्ट बनाते हुए, पिछली पॉडकास्ट बनाते हुए मुझे अंदाजा हुआ यार, एक छोटे छोटे साउंड इफेक्ट, मेरी तो ऑडियो थी, सोचो तुम वीडियोस में लोग जिस तरह यूट्यूबर्स कर रहे हैं, इफेक्ट्स डाल रहे हैं, स्टफ लाइक दैट, मैं सर खपा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैद, इस ऑडियो को मैं एडिट कैसे करूँ, देयर इज नो प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो फ्री हैं, सो आई हैव टू बाय वन, स्टफ लाइक दैट। तो a lot of investment goes into all of this, and अ लॉट, yeah. मतलब इट्स लाइक, अब फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी एडिटिंग शुरू, जब व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, मुझे आइडिया था कि मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आई हैड कंप्लीट आइडिया, क्योंकि मैंने स्कूल में इस तरह का काम किया हुआ था पहले। मुझे मुझे ना ये काम करने का शौक है। तो मैं ना मेरा कंप्यूटर थोड़ा है पुराना, तो अब मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर की हालत कैसी है। तो और उस वक्त मुझे एडिटिंग आती भी नहीं थी, तो मैं 12 घंटे इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर आई एम सिटिंग एंड आई एम एडिटिंग, एंड आई गॉट माई हेडफोन्स ऑन, और मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये बात बोली, आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही, म्यूजिक कैसा है, म्यूजिक म्यूजिक मजे का लग रहा है नहीं लग रहा है, ये म्यूजिक इसके साथ जा रहा है। मतलब इट टुक मी 12 आवर्स टू मेक अस मैक्सिमम 6 मिनट 8 मिनट वीडियो। मतलब 8 मिनट के लिए मैंने अपने 12 घंटे जो है लगाए।
सही है। उसके बाद फिर एक और वीडियो बनाई जो कि 7-6 मिनट की थी, और उसके लिए फिर मुझे 10 घंटे लगे। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई, फिर उसके लिए मुझे 2 घंटे कम लगे। लेकिन ये होता है कि मतलब एवरी टाइम, अच्छा मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू डू न्यू स्टफ एवरी टाइम। मैंने कभी भी ना एक सर्टेन हाँ वो नहीं फॉलो नहीं किया। मतलब अगर तुम मेरा चैनल देखो ना, तो ट्रैवल ब्लॉग से शुरू किया, फिर फूड के अंदर आया, डेली 3 दिन की डेली ब्लॉगिंग की। मतलब उसके अंदर फिर मैंने टाइम लैप्स भी दिखाया, मैंने उसके अंदर जो है वो स्टोरी टेलिंग भी की, मोटिवेशनल भी की, मैंने फूड व्लॉगिंग भी की, मैंने प्रमोशनल वीडियो भी की, इंटर्नशिप वीडियो की, जिम हाँ। वीडियो की। पता नहीं, मैंने मतलब मैं ना हर वक्त कुछ नया करता हूँ। मुझे ये होता है कि समथिंग न्यू समथिंग, और अभी भी समथिंग न्यू, अभी एक और चीज आने वाली है, तो हाइप क्रिएट कर रहा हूँ So इसे। basic thing is कि you do this for you आई और डू इट not फॉर for मी। someone else, क्योंकि मैंने नोटिस किया एक दो पॉडकास्ट में ही मुझे ख्याल आया कि यार इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। और ये ट्रेंड जो मैंने एक स्टार्ट किया, दिस इंटरव्यूइंग थिंग, इज बेसिकली, देखो, एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल एवरीवन and डज। everybody needs the spotlight. Everybody deserves a spotlight. It's आई not थिंक just the इवन celebrities. जिंदगी में No. एक छोटा सा भी किस्सा हो ना, तो इट्स अ स्टोरी, एंड इफ यू लर्न फ्रॉम इट, यू नीड टू टेल। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज आती है, देन आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ नोइंग दैट थिंग इज शेयरिंग। आप किसी को अपनी चीज बताओगे ना, दूसरा बंदा वो काम करने से पहले खुद होशियार हो जाएगा, नहीं यार ये इस बंदे के साथ इस तरह का कुछ हो चुका है, ये हमारे साथ ना हो। तो वो बंदा पहले ही प्रिकॉशन ले लेता है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर। मतलब मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर थिंग्स। Definitely. So, 40 minutes into the interview. So, Zed, basic thing, you moved, you learned, आई लर्न, and यस। it didn't break you. Instead, I think you were way stronger than before. अब जब तुम अपना पिछला वो जदा वाला Zed देखते हो, how हाँ does it feel? यार, इट फील्स लाइक, मतलब आई डोंट नो, आई पता नहीं, आई जस्ट थिंक अबाउट मी एज अ वेरी लल्लू पप्पू बच्चू। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आना मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि मैं वो अब नहीं हूँ। लेकिन वो उस टाइम पे जैसा मैं था, वो होना भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं इतना समझदार होता, तो आज मतलब फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो तो आई थिंक इट्स ये इट्स अ वेरी लॉन्ग वे कि मैं आया हूँ, एंड आई लव इट। मतलब एक पप्पू से now you're a millennial. आई एम अ मिलेनियल। यस आई it, एम। it was a great journey, huh? So also, Zed, this was a little podcast. I wasn't expecting, I wasn't expecting it to be this long. It was actually pretty fascinating. यस। So, Zed has a YouTube channel. I'll put the link somewhere. Anchor app पे भी जाएगा ये तो, I'll put the link in there. And this, I think we should just wrap this up. So, ऑलराइट, YouTube श्योर। and stuff. It was pretty awesome. I think everybody आई should start off with their own channel or something. I think it's not, Expressing it. it's not just about channel, but it's about how you channel yourself into being something. For example, अब मैं हूँ, मुझे वीडियोस के तरीके में या पॉडकास्ट या बात करने के तरीके से ना बहुत अच्छा लगता है एक्सप्रेस करना। कुछ लोग होते हैं जो कि पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि डिजिटल आर्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो स्केचेस बनाते हैं। देर आर plentiful talent in Pakistan, and I have seen a lot, matlab a lot of people. I discover a lot of people, and I love that। मतलब आप ना, अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी टैलेंट है ना, इवन इफ यू कैन आई डोंट नो, इफ यू कैन पेंट, तो पेंट इट सो दैट, पेंट मोर सो दैट पीपल नो दैट यू कैन पेंट वेल। तो Exactly. अब मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो आई वांट पीपल टू नो दैट यस आई डू व्लॉगिंग, आई डू। अब जैसे तुमने मुझे बोला ना कि आई हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ये इस तरह का शुरू से नहीं था, बिल्ड किया इसको। तो अगर कोई बंदा पेंटर है, तो वो पहले दिन पे सबसे अच्छी पेंटिंग नहीं बनाएगा। तो आई जस्ट, इट्स अ स्मॉल मैसेज जो कि मुझे पता है पीपल वोंट लाइक यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मतलब आई गेट दैट अलॉट के तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, और तुम मतलब इट विल इट विल गो, मतलब फारिग हो जाओगे और नई लोगों को पसंद आओगे, ये और वो मतलब सुनने को मिलता है। बट मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप
आप अपना काम जब आप सबसे अपना 100% आज दोगे ना, जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने सारा 100% आज दे दिया ना, तो मतलब उस पे ना वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। वो 100% सिर्फ एक पोर्ट्रेयल होगा कि ये मेरा हम्म। ऐसा काम था। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को थोड़ी सी छोटी मोटी सी मोटिवेशन चाहिए ना, मेरी पहली वीडियो जाके देखो, मैंने वो वर्टिकल बनाई है, यूं बनाई है। और अब जो है मैं काफी हद तक उसको, अब मेरी सबसे रिसेंट वीडियो देख लो, तो यू विल गेट दैट मेजर डिफरेंस इन माय वीडियोस, मतलब आई थिंक सो। Definitely. Acha, so consistency is key. A lot of people have made it. Irfan यस, Junejo, even Shamoon Ismail has become really famous. लेकिन पहले यस, उसको कोई नहीं जानता था. So बिल्कुल। basic thing is consistency. Zed, it was amazing talking to you. It was amazing इट getting to वाज, know you, and definitely we'll put this up in quite a while. And इंशाल्लाह, yeah, so I'll be catching up with you soon, श्योर and मैन, I'll आई वुड wind this लव up दैट। now. Definitely. एंड Again, I just wanted to thank Allah, and I wanted to thank you for having me, because thank you for it being was here. lovely. It was lovely Definitely. क्योंकि I wasn't expecting, मुझे ये था कि यार मैं कितनी क्या बात करूंगा, but honestly you are a great host, and I'm I wish glad. you you be doing this stuff, and hopefully you will be a good competitor क्योंकि I am starting a podcast as well. Definitely. I So think and Zed, doing this together is way better than thinking of each other as rivals, you know. एक बिल्कुल, साथ बिल्कुल। करो, grow करो, Exactly. I doing just wanted something to like say that. that inshallah, I'll be inviting you over my podcast as well. Definitely. And great work for the initiative. I love it when my friends are, putting out their best and their efforts, and I love it. I'm proud of you that you started this. So Yep. yes, So, anyway, Zed, I'll wind up here. I'll catch up with you soon. And sure, guys, man. thank you for watching. Thank you for watching.